Good morning, students. This is chapter Hydrogen of class 11th Chemistry. Hydrogen, the most abundant element in the universe and the third most abundant on the surface of the globe, is being visualized as the major future source of energy. This is saying कि हाइड्रोजन जो है यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट है और सरफेस ऑफ द ग्लोब हमारी अर्थ पे ये तीसरा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है. सो इस वजह से हम इसे एक मेजर फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में देख सकते हैं. So hydrogen has the simplest atomic structure among all the elements around us is nature. In atomic form, it consists of only one proton and one electron, where hydrogen has only one proton and one electron. So this atomic number and the mass number is 1, atomic number is 1, it is one electron and the one proton. Do you know that the global concern related to energy can be overcome to a great extent by the use of hydrogen as a source of energy? So in fact, hydrogen is of great industrial importance as you will learn in this unit. Now first is the position of hydrogen in the periodic table. In the periodic table, where should we place the hydrogen basically? So hydrogen is the first element in the periodic table and its placement in the periodic table has been a subject of discussion in the past. So as you know by now that the elements in the periodic table are arranged according to their electronic configurations. तो अभी तक तो आप यही जानते हैं एलिमेंट्स अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अरेंज्ड है in the periodic table. So now hydrogen has electronic configuration 1s1 and on one hand its electronic configuration is similar to outer electronic configuration of alkali metals, which is ns1, which belong to the first group of the periodic table because its configuration is 1s1, so it belongs to ns1 part. इससे मैच करता है, दैट इज ऑफ alkali metals से इसकी configuration मैच कर रही है. But on the other hand, like halogens now its electronic configuration common is ns2np5 and it is of the 17th group. It is short of one electron to the corresponding noble gas configuration. Fine. तो इट इज सेइंग जस्ट लाइक द हाइड्रोजन ऑल्सो, हाइड्रोजन के पास भी अब एक इलेक्ट्रॉन की ही कमी है कि वो नोबल गैस बन जाए लाइक हीलियम. तो ये 17 से भी मैच करती है और ये ग्रुप 1 से भी मैच कर रहा है. सो हाइड्रोजन देयरफॉर हैज़ रिजेंबलेंस टू एल्कली मेटल्स विच लूज वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस as well as with halogens which can gain one electron to form uni negative ion. अभी एल्कली मेटल्स की तरह एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और H आयन भी बना सकता है और हेलाइड्स की तरह या हैलोजेंस की तरह एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और हाइड्राइड भी बना सकता है. दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं अब यहाँ पे. सो लाइक एल्कली मेटल्स हाइड्रोजन फॉर्म्स ऑक्साइड्स, हेलाइड्स एंड सल्फाइड्स. अब एल्कली मेटल्स की तरह हाइड्रोजन ऑक्साइड्स भी बनाता है, वाटर, हेलाइड्स भी बनाता है, फाइन, एंड सल्फाइड्स भी बनाता है, फाइन, सल्फाइड्स भी बनाता है. ठीक है. सो तीनों चीज़ें अब हाइड्रोजन आपका, दिस इज़ दी सल्फाइड, दिस इज़ ऑक्साइड एंड हेलाइड्स. हैलोजन लगा सकते हैं आप. तो however, unlike the alkali metals, it has a very high ionization enthalpy and does not possess metallic character under normal conditions. In fact, in terms of ionization enthalpy, hydrogen resembles more with halogens. It is saying, अब जितने भी आपके alkali metals हैं इनकी बहुत ज़्यादा it has a very high ionization enthalpy. जितने भी आपके alkali metals हैं उनके पास ionization enthalpy लो रहती है, लेकिन जो halogens हैं उनके पास ionization enthalpy बहुत ज़्यादा है उनकी. तो इस वजह से उनके पास मेटलिक करेक्टर नहीं है अंडर नॉर्मल कंडीशंस. तो अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हाइड्रोजन की हैलोजन से ज़्यादा रिजेंबल करती है. फाइन. इधर देखें आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है लिथियम की विच इज़ 520 एंड फ्लोरीन की 1680 किलोजूल पर मोल एंड दैट ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1312 किलोजूल पर मोल. यानी कि हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, सॉरी रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन को एनर्जी ज़्यादा चाहिए. तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इज समवॉट सिमिलर टू फ्लोरीन. फाइन. सो लाइक हैलोजेंस, सो जिस तरीके से एल्कली मेटल्स की तरह ऑक्साइड्स, हेलाइड्स और सल्फाइड्स बना रहा है, सो जस्ट लाइक दैट आपके जो हेलाइड्स की बात करें तो हम H2 को कंसिडर करेंगे. H2 इज़ द हेलाइड ऑफ हाइड्रोजन ऑब्वियसली. सो लाइक हैलोजेंस इट फॉर्म्स अ डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. अब हैलोजेंस की तरह आपका हाइड्रोजन डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाएगा जैसे कि H2 पर मैंने लिख दिया, एंड कंबाइंड्स विद एलिमेंट्स टू फॉर्म हाइड्राइड, और दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके हाइड्राइड भी बनाएगा. फाइन. एंड लार्ज नंबर ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, और बहुत सारे कोवलेंट कंपाउंड्स भी बनाता है. फाइन. हाइड्राइड्स बनाएगा जैसे कि सोडियम H देखें तो सोडियम हाइड्राइड हो गया.
तो आपका हैलोजेंस की तरह, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल की तरह भी एग्जिस्ट करता है, ये हाइड्राइड्स भी बनाता है एंड लार्ज नंबर ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स भी बनाता है. इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी इट इज़ वेरी लो एज़ कम्पेयर टू द हैलोजेंस. और अगर हम इसके रिएक्टिविटी कंपेरिजन करें तो हैलोजेंस के कंपेरिजन में इट्स रिएक्टिविटी इज़ वेरी लो. So in spite of the fact that hydrogen to a certain extent resembles both, तो फैक्ट यही है कि जो हाइड्रोजन है वो एल्कली मेटल से भी रिजेंबल कर रहा है, हैलोजन से भी रिजेंबल कर रहा है और दोनों से डिफरेंट भी है थोड़ा सा. सो नाउ द पर्टिनेंट क्वेश्चन अराइजेज एज वेयर शुड बी प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल. सो लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम रिजल्ट इन द न्यूक्लियस विच इज H positive and size is this, and this is extremely small as compared to the normal atomic or the ionic sizes of 50 to 200 picometer. तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से निकाल दें तो हमारे पास जो भी आपका प्रोटॉन बचेगा या जो हाइड्रोजन आयन बचेगा उसका जो साइज़ है दैट इज़ दिस मच पिकोमीटर. एंड ये बहुत ही जो ज़्यादा छोटा है अगर हम इसको किसी नॉर्मल एटॉमिक साइज़ या आयनिक साइज़ से कंपेयर करें, बिकॉज मोस्टली नॉर्मल एटॉमिक और आयनिक साइज़ आपके 50 to 200 पिकोमीटर तक रहते हैं. सो एज ए कॉन्सिक्वेंस H पॉजिटिव डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली. तो यानी कि H पॉजिटिव भी फ्री एग्जिस्ट नहीं कर सकता एंड इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद अदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स. इसी वजह से ये हमेशा दूसरे एटम्स या मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड रहेगा. दस इट इज़ यूनिक इन बिहेवियर. इस वजह से इसका जो बिहेवियर है इट इज़ वेरी यूनिक एंड देयर फॉर बेस्ट प्लेस सेपरेटली इन द पीरियोडिक टेबल. तो इसी वजह से हम हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में सेपरेटली प्लेस करते हैं. हम इसे किसी ग्रुप में नहीं रखते. जहाँ भी पीरियोडिक टेबल में टॉप पे हाइड्रोजन रहेगा हमेशा एक गैप रहेगा बाकी ग्रुप्स के उसमें. ग्रुप 1 में और हाइड्रोजन में ऑल तो लगेगा वो आपको ग्रुप 1 में है पर ग्रुप में 1 में नहीं होगा बिकॉज देयर विल समवट गैप. सो हाइड्रोजन किसी भी ग्रुप से बिलोंग नहीं करता. ठीक है, बिकॉज इट हैज़ अ यूनिक बिहेवियर. ये दोनों से रिजेंबल कर रहा है, ग्रुप 1 से भी ग्रुप 17 से भी, और दोनों से ही अलग भी है थोड़ा सा. नाउ द डाईहाइड्रोजन. So the occurrence dihydrogen is the most abundant element in the universe now, 70% of the total mass of the universe, and it is the principal element in the solar atmosphere. So giant planet Jupiter and the Saturn consist mostly of hydrogen. ये दोनों planets mostly हाइड्रोजन से ही बने हैं. However, due to its light nature, it is much less abundant in the Earth's atmosphere. अब light nature, इसका nature बहुत हल्का है, बहुत लाइट वेटेड है ये हाइड्रोजन आपकी. सो इस वजह से इसकी जो अबंडेंट है हमारी अर्थ्स एटमॉस्फेयर में बहुत लेस है, दैट इज़ 0.15% बाय मास. ऑफ कोर्स इन द कंबाइंड फॉर्म इट कॉन्स्टिट्यूट 15.4% ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट एंड द ओशियंस. और कंबाइंड फॉर्म में अगर हम देखें तो ये 15.4% प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में और द ओशंस में. इन द कंबाइंड फॉर्म बिसाइड्स इन वाटर इट अकर्स इन प्लांट, एनिमल, टिश्यूज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, हाइड्राइड्स इंक्लूडिंग हाइड्रोकार्बन एंड मैनी अदर कंपाउंड्स. सो ये इन सब के बावजूद, इन सब के अलावा ये बहुत सी चीज़ों में प्रेजेंट है. ये प्लांट में प्रेजेंट है, एनिमल में प्रेजेंट है, टिश्यूज़ में, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, हाइड्राइड्स इंक्लूडिंग हाइड्रोकार्बन एंड मैनी अदर कंपाउंड्स. दिस इज़ द अकरेंस ऑफ डाईहाइड्रोजन. नाउ द आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन. अब हम आइसोटॉप की बात करें तो इसके 3 आइसोटॉप है. पहला है प्रोटियम, देन ड्यूटेरियम, थर्ड इज़ द ट्रिटियम. तो तीनों में डिफरेंस क्या है? एटॉमिक मास का. दिस इज़ द प्रोटियम और द हाइड्रोजन ओनली, ड्यूटेरियम एंड दिस वन इज़ प्रोटियम. तो मास नंबर इंक्रीज कर रहा है. इट मीन्स हियर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग. कैन यू गेस हाउ these isotopes differ from each other? These isotopes differ from one another in respect of the presence of neutrons. Ordinary hydrogen protium has no neutron. This protium has no neutron. Deuterium has 1 and tritium has 2 neutrons in the nucleus. And deuterium is also known, this is deuterium, this is also known as the heavy water. In the year 1934, an American scientist, Harold C. Urey, got Nobel Prize for separating hydrogen isotope of mass number 2 by physical methods. So इसको Nobel Prize मिला था because इसने आपका क्या किया, आइसोटॉप 2 जो ड्यूटेरियम है उसको हाइड्रोजन से सेपरेट किया बाय फिजिकल मेथड्स. फाइन. सो 3 आइसोटॉप्स आर देयर एंड जो आपका ट्रिटियम है दैट इज़ रेडियो एक्टिव इन नेचर. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिखी है हाइड्रोजन की. अबंडेंस, एटॉमिक साइज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन सब आप देख लेना. ऐसे चांस से कभी क्वेश्चन नहीं आते बट दिस इज़ फॉर द रेफरेंस. नाउ द प्रीडोमिनेंट फॉर्म इज़ प्रोटियम. सबसे ज़्यादा जो डोमिनेट करती है फॉर्म वो कौन सी है? वो प्रोटियम है. टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन कंटेन्स
अब जो हमारा टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन है, जो हमारी अर्थ पे हाइड्रोजन है बेसिकली, दैट कंटेन्स 0.0156% ऑफ ड्यूटेरियम मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ HD। फाइन, तो टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन के अंदर 0.0156% ड्यूटेरियम प्रेजेंट है, वो भी HD की फॉर्म में। जैसे H2 होता है तो एक हाइड्रोजन की जगह D लगाते, दैट विल बी दी HD। And the tritium concentration is about 1% per 1018 atoms of 1 atom per 1018 atoms of protium। तो अगर आप ट्रीटियम की देखें तो उस केस में 1018 एटम्स अगर लगाएं आप प्रोटियम के, उसके बाद आप सोच सकते हैं कि एक एटम एग्जिस्ट करता होगा, किसका? ट्रीटियम का। ऑफ दीज आइसोटोप्स ओनली ट्रीटियम इज रेडियो एक्टिव एंड एमिट्स लो एनर्जी, दैट इज बीटा पार्टिकल्स। फाइन, और ट्रीटियम रेडियो एक्टिव है जो आपकी लो एनर्जी एमिट कर रहा है, और बीटा पार्टिकल्स एमिट करता है जिसकी हाफ लाइफ 12.33 ईयर्स है। Since the isotopes have the same electronic configuration same है, they have almost the same chemical properties, the only difference is in their rates of reactions। अब दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी ऑलमोस्ट सेम है, बट डिफरेंस क्या रहेगा? रेट ऑफ रिएक्शन में। एंड रेट ऑफ रिएक्शन दैट मेनली ड्यू टू देयर डिफरेंट एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्यों इन तीनों की अलग है? क्योंकि तीनों की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी। However, in physical properties, these isotopes differ considerably due to their large mass differences। और अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ये तीनों आइसोटोप्स आपस में बहुत ज़्यादा डिफ़र करते हैं, बिकॉज इन तीनों का मास जो है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से। लार्ज मास डिफरेंस है तीनों के अंदर, तीनों के अंदर लार्ज मास डिफरेंस है, इस वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी डिफरेंट रहती है। केमिकल समवट सेम रहती है, बट रेट ऑफ रिएक्शन हम कह सकते हैं तीनों का अलग रहेगा, बिकॉज तीनों की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज is different। Fine, so this is the part 1 of hydrogen chapter।